हेलो एंड वेलकम टू इंडिया न्यूज बिजनेस और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। तो आज हम आ गए हैं क्लाइम सिटी, जैसे कि आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। ये है नोएडा की सेक्टर 132 में। काफी एडवेंचरस जगह है, काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर है। तो चलिए चलते हैं और जाकर देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, किस तरह से चीजें इंजॉय करने को मिलती है। आइए चलते हैं। पीछे आप जो ये देख रहे हैं, ये है इंडियाज बिगेस्ट इंडोर क्लाइंबिंग वॉल। तो चलिए चलते हैं और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि मैं ये कर पाती हूँ या फिर नहीं। Hand it over to Prateek. Bhai. I'm Prateek Jain. I'm from a complete business background. I've run factories, I've made new factories, I've done multiple businesses. So when Pranav was a sportsman, he came up to me and we discussed this idea. So, and also my wife Ritika Jain, she takes care of the play area, the kids part. Now she's experienced for the past 10-15 years in the kids fair. So we started with a retail toy shop in Sector 18, and then she started doing birthday parties for kids. Then she opened a library at home. So she's an MBA from MDI College. So she started a library. Now there are about 30-40 children monthly who come in the library, and so I mean she comes from the totally kids based thing. Then Rishabh is also a cousin who was a chef at prestigious restaurants in 5 stars. So I invited him also to join in. So getting all these three together here was the vision, is the vision to create a family outing which is healthy and fun. So yeah, we look at people coming in on weekends with their families. So the elders are coming, they're trying climbing, the kids are climbing, they're playing, and then after that they're eating food at Burash. We have a lot of birthday parties here. So this has become like the best place for birthday parties in Noida as well. So yeah, we thank the public of Noida, and we're getting a lot of people from Delhi now. So yeah, so the business is going well, and it's all a passionate cause. So Pranav's passionate about rock climbing, Rishabh is super passionate about food, and Ritika about children. So I'm the one trying to make money from their passions. The goal is obviously to sustain this place. That is the first goal, because it is a niche sport and I know it will take time for it to grow. Yeah. And why I wanted to get sustained is because 8 साल खुला रहेगा तभी हम कुछ एथलीट्स के साथ कर पाएंगे. If we get time with young people, we need at least 5 years or 6 years कि हम उनका स्किल उस लेवल पे बिल्ड कर पाए. So the major goal with this place is to, like I said, कि हमें इंटरनेशनली मेडल प्रोड्यूस करना ही. हम ये वॉल और सस्ती बना सकते थे. आप जो ये होल्ड्स देख रहे हैं सब बुल्गारिया से मंगाए हैं मैंने, बाहर यूरोप से. इंडिया में भी मिलते हैं, लोकल भी मिलते हैं. सो मैं कॉस्ट बचा के उसको एज अ बिजनेस वो कर सकता था, बट वो फैसिलिटी बनी ही उस माइंडसेट से. सो वी आर कीपिंग डिस्काउंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्लैट 40% ऑफ फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, बिकॉज कॉलेज स्टूडेंट्स बेचारे पॉकेट मनी पे चलते हैं, उनके पास वैसे ही बजट नहीं होता है चीज़ों के लिए. और स्कूल के बच्चे फिर भी पेरेंट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल रेगुलर प्राइसेस चलती है. उसके अलावा हम कॉम्पिटिशन्स रखते हैं. जैसे एक तो हो गया आपका प्रोफेशनल लेवल पे कंपटीशन हो गया, और एक हो गया कि हम थोड़ा एमेच्योर लेवल पे कंपटीशन रखते हैं. अभी सैटरडे संडे को ही था एमेच्योर लेवल कंपटीशन, तो उसमें जितने भी जो लोग इस साइड चढ़ते हैं, जो लोग थोड़ा नॉर्मल फन के लिए चढ़ते हैं, तो वी हैव टू डू इवेंट्स फॉर देम so that they come here, they have good memories, they enjoy, they struggle together, and everyone then wants to come back.
ऑल्सो इसमें मैं ऐड करूंगा इवन पूरा एटमॉस्फेयर बिल्ड करना। हमारा पहला पुल बुराश के थ्रू यंगस्टर्स को यहाँ लेके आना है। जैसे आप बोले अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि ऐसा कुछ है। आई थिंक पुल लाने के लिए पहला होता है अवेयरनेस बताना कि ऐसा कुछ हो सकता है, आप जिमिंग के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट करना यहाँ के म्यूजिक से, यहाँ का एम्बियंस से, कि यंगस्टर्स को कुछ नया तरह का भी करना है, साथ में खाना पीना भी है, बट इवेंचुअली जहाँ आते हैं उनको वो फ्रेंडली फीलिंग चाहिए। यहाँ कंफर्टेबल हो सकते हैं। म्यूजिक आज की डेट में जिम्स देख लीजिए, गोल्ड जिम हो गया, कोई भी हो गया, क्यों वो म्यूजिक पे इन्वेस्ट करते हैं या वैसे एटमॉस्फेयर पे करते हैं। सो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा टारगेट है कि उनको वो एटमॉस्फेयर देना, उनको वो पुल देना जिससे वो कंफर्टेबल फील करे और इसको इनहैबिट करना चालू करे। तो अब हमारे साथ है प्रणव जैन जो हमें बताएंगे इस क्लाइम सिटी के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू। सो क्लाइम सिटी मेरा एक कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है शुरू से, जब से मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट करी है। ये जगह बनी है ताकि सब लोग क्लाइंबिंग के बारे में जान सकें, चाहे वो ऑफिस जाने वाले लोग हों, चाहे वो वर्कआउट करने वाले लोग हों, चाहे वो बच्चे हों जो एक नई एक्टिविटी ढूंढना चाह रहे हैं। एंड ये एक ओलंपिक स्पोर्ट है जो 2020 ओलंपिक्स में ऐड किया गया है, आउट ऑफ अदर 3-4 स्पोर्ट्स दैट हैव आल्सो बीन एडेड इन द ओलंपिक्स। तो उसको दिमाग में रखते हुए ये जगह बनाई गई है। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी हुई है जगह। यहाँ पर आप कैजुअल एक्सपीरियंस के लिए आ सकते हैं, वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए आ सकते हैं, बर्थडे पार्टीज होस्ट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं विजिट के लिए। उसके अलावा अगर आप एथलीट हैं तो यहाँ पर स्पेशल एक कंपटीशन वॉल है, आप अपनी ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। तो यस, दैट्स अबाउट क्लाइम सिटी। जैसे और भी बहुत सारी क्लाइम सिटी बनी हुई है, क्लाइंबिंग वॉल जो बनी हुई है, लेकिन वो आउटडोर है, ये इंडोर है। तो यहाँ पे और क्या इसकी क्या स्पेशलिटीज हैं? तो स्पेशलिटी ये है कि ये एयर कंडीशनड है पूरा अंदर से। एंड जितने भी यहाँ पर आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये रूट्स हम लगा के इन पर डिफिकल्टीज लगाते हैं। जब आप बाहर के किसी जिम में जाते हैं तो फिर लोग सिर्फ लगा के ऐसे छोड़ देते हैं। हमने प्रॉपर डिफिकल्टी इस्टेब्लिश कर रखी है, तो अगर कोई फर्स्ट टाइम भी आएगा उसको पता लग जाएगा कि ये इजी चीज़ है या ये हार्ड चीज़ है, एंड फिर वो इजीली ट्राई कर सकते हैं। वरना आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और आप सीधा ही कुछ हार्ड चीज़ ट्राई करेंगे तो आपके लिए बहुत डीमोटिवेटिंग हो सकता है। तो जैसे ये इंडियाज बिगेस्ट क्लाइंबिंग वॉल है, इंडोर क्लाइंबिंग वॉल, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या क्या चीजें हैं, सेफ्टी क्या क्या है? सो सेफ्टी के लिए हमारे पास बोल्डिंग साइड में ये ऑलमोस्ट 1.5 फुट मोटे मैट्स हैं। इन पे हमने खुद फॉल लेके टेस्ट करा हुआ है पूरा वॉल की टॉप की हाइट से, कि आपका फॉल कितना सॉफ्ट आ रहा है, कितना हार्ड आ रहा है। तो इस पे हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें कोई ढंग से अगर फॉल लेंगे तो उनको इंजरी का कोई चांस नहीं है। एंड यहाँ पर रोप वाली वॉल पे देख रहे हैं, हमने रोप सिस्टम्स लगा रखे हैं ऊपर। इनको टॉप रोप डिवाइसेस बोलते हैं। इनके अंदर एक्स्ट्रा फ्रिक्शन होता है, तो जो आदमी नीचे से रोप खींच रहा होता है, मान लीजिए उनका अगर हाथ स्लिप भी हो जाता है, इन डिवाइसेस में इतना फ्रिक्शन है कि वो रोप कभी लूज नहीं छूटेगा। वो लोग फिर भी धीरे से ही आएंगे नीचे। और फिर डिवाइस पे भी हमने बैकअप दे रखा है, इनकेस डिवाइस फेल हो जाती है देन डिवाइस को भी रोकने के लिए कुछ है। उसके अलावा हमारे पास ऑटो बिलेट डिवाइसेज हैं, ये यूरोपियन डिवाइसेज हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, ये प्री अप्रूव्ड आती हैं। इनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे चेक्ड होते हैं, इनके हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है, लॉग बुक्स भरनी पड़ती हैं रेगुलरली कि हम इनको मेंटेन कर रहे हैं, फिर वो कंपनी के पास जाती हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स हम करते हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि चीज़ें सेफ हैं कम्प्लीटली। तो जैसे कोई बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल न्यू कमर है, जैसे कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, या फिर लेकिन मेरे को इंटरेस्ट है, मैं देख के मन कर रहा है करने का, तो मेरे लिए क्या कुछ प्लान्स होंगे यहाँ पे? मतलब बिल्कुल न्यू फ्रेशर के लिए क्या कुछ प्लान है, उनके कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कुछ है? बिल्कुल। जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो हम आपको ऑब्वियसली सबसे ईजी रूट्स पे चढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम टेप से यहाँ पर डिफिकल्टी इस्टेब्लिश करते हैं। तो मैं आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले वाइट टेप पे लेके जाऊंगा। वाइट टेप अगर आप देखेंगे लैडर जैसा है, बिल्कुल जो ऑरेंज होल्ड्स भी लगे हुए हैं उधर, बिल्कुल ही लैडर जैसा है। सो इसमें आपको एक बेसिक कंफर्ट पहले हाइट का आ जाएगा। उसके बाद हम फिर थोड़ी हार्ड चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। हम आपको बेसिक्स बता सकते हैं, आपको फॉल कैसे लेनी है। तो ये सब चीज़ें आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस देती हैं। उसके बाद फिर आप थोड़ा अच्छा और चढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो इसके अंदर एटलीस्ट पहले 2 हफ्ते जाता है, 3 हफ्ते जाता है। उसके बाद कुछ ट्रेनिंग का वो बनता है, मतलब कि हम आपको उसके बाद ट्रेन कर सकते हैं, मतलब
properly. अब जैसे हम वॉल क्लाइंबिंग सीखते हैं, यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, उसके बाद आगे हमारे लिए फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती हैं, क्या कुछ होगा? फ्यूचर में आप यहाँ पर जोनल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हैं, नेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकते हैं। उसके अलावा ऑल अराउंड इंडिया काफ़ी सारे और क्लाइंबिंग जिम्स हैं जिनके अपने इंडिपेंडेंट क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। प्लस आप आर्मी में घुस सकते हैं, आर्मी कोटा के थ्रू। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको डायरेक्टली ग्रेड लेवल 2 का जॉब मिलता है आर्मी के अंदर। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर जिम्स हैं और वो हैं, वो लोग क्लाइंबर्स को एम्प्लॉय करते हैं। जैसे मेरी टीम में भी सारे नेशनल लेवल चैम्पियंस हैं। सो एक प्रॉपर एक करियर पाथ है। सिर्फ स्पोर्ट भी नहीं है, बट अगर मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, आप क्लाइंबिंग के बारे में सीख के अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं। आजकल लोग MBA कर रहे हैं, उनको 60,000 रुपीज़ का जॉब नहीं मिलता है, बट क्लाइंबिंग करके उनको मिल जाएगा शायद। चलो, स्कोप तो है। अब इसकी फीस क्या कुछ होगी, क्या क्या पैकेजेस हैं यहाँ पे? तो वॉक इन चार्जेस होते हैं ₹1000, जिसके अंदर आप 800 रुपये डे पास के लिए देते हैं एंड 100 रुपये आप रेंटल के लिए देते हैं। वो अलग प्राइस इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के पास अपना सामान होता है, तो वो सिर्फ 800 पे करते हैं। जिनके पास जो फर्स्ट टाइम जैसे आप आएंगे, आपके पास ऑब्वियसली हार्डनेस और शूज़ नहीं होंगे, तो आप 1000 रुपये पे करेंगे। मान लो कोई बच्चा आता है, पेरेंट्स को बच्चे को असिस्ट नहीं करना है और हमें उनको इंस्ट्रक्टर देना है, तो हम 1200 रुपये चार्ज करते हैं एंड पूरे सेशन के लिए फिर इंस्ट्रक्टर बच्चों के साथ रहता है। एंड उसके अलावा मेंबरशिप ऑप्शन है, पंच कार्ड ऑप्शन है। एक महीने की मेंबरशिप अराउंड 6000 रुपीज़ की है, जिसमें आप कितनी बार भी आ सकते हैं, कितने घंटे भी रह सकते हैं, तो वैसे तो इस क्लाइम सिटी में क्लाइंबिंग के अलावा और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, एक डे आउट के लिए? तो क्लाइंबिंग के अलावा हमारे पास ये सॉफ्ट प्ले एरिया है, जिसमें अराउंड 40 एक्टिविटीज़ हैं। स्लाइड, ट्रैम्पोलिन, प्रोजेक्टर गेम्स, बच्चों के लिए ऑब्स्टिकल कोर्स है। तो और उसके अलावा बाहर एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट है और एक किड्स कैफ़े है। तो अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और आप डे आउटिंग ढूंढ रहे हैं, या फिर आप रेगुलरली कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आप मान लो बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ना चाहते हैं, बैठ के खाना चाहते हैं, तो वो सब भी है हमारे पास। और इसका रूट क्या रहेगा? नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, या कोई आना चाहता है तो वो कैसे पहुंचे यहाँ पे? मेट्रो स्टेशन या तो आप सेक्टर 137 आएंगे, या फिर आपको बोटानिकल गार्डन से टैक्सी या फिर ऑटो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल। लास्ट, कोई रूल्स और रेगुलेशंस या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस, या फिर अगर वॉल क्लाइंबिंग करनी है उसके लिए कोई मेडिकल चेकअप या कोई कुछ चीज़ है? अगर हार्ट प्रॉब्लम होती है लोगों को एंड थोड़े से ओल्ड होते हैं, तो हम उन लोगों को मना करते हैं करने के लिए। एज लिमिट, टॉप एज लिमिट कुछ नहीं होती है। स्टार्टिंग एज लिमिट 6 इयर्स होती है, बट उसमें भी बच्चों पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा, 4 साल के बच्चे भी हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पेरेंट्स फिटनेस में होते हैं तो बच्चे भी जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं एंड वो एक्टिविटी को इजीली ले पाते हैं। हाँ जी। पर्टिकुलर कोई कॉस्ट्यूम्स? कॉस्ट्यूम नहीं, आपको बस कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं ताकि आपके हाथ पैर फ्रीली मूव कर सकें, और सॉक्स पहन के आनी है, क्योंकि जो हम आपको शूज़ देते हैं वो रेंटल शूज़ होते हैं और उनको सब लोग पहनते हैं, तो वो कॉमन शूज़ है। तो एज अ हाइजीन इशू इट्स बेस्ट इफ यू वेयर सॉक्स। हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम, थैंक यू। तो ये पूरा प्लेइंग एरिया है जहाँ पर छोटे बच्चों को आप छू सकते हैं। छोटे बच्चे यहाँ पे काफी देर तक खूब अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर कोई पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को लेकर क्लाइंब सिटी में आते हैं तो वो वॉल क्लाइंबिंग करते हैं, तो अपने बच्चों को यहाँ छू सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए काफी सारी एक्टिविटीज है, स्विंग्स भी है, सॉफ्ट ट्यूब्स पड़ी हुई है ट्रैम्पोलिन की तरह, ताकि अगर बच्चे गिर जाए तो उन्हें कोई चोट नहीं लगेगी, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो ये है इनका बुराश रेस्टोरेंट। चलिए यहाँ पर भी चलते हैं और देखते हैं किस तरह की एम्बियंस है और क्या कुछ मेन्यू है यहाँ पर।
तो ये क्लाइंब सिटी थी जहां पर हमने देखा बिगेस्ट क्लाइंबिंग वॉल थी, रेस्टोरेंट था, टेस्टी टेस्टी फूड था, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी था और एम्बियंस भी काफी ज्यादा अच्छी थी, सर्विसेज भी काफी अच्छी थी, इंस्ट्रक्टर भी बहुत अच्छे थे। तो एक डे आउट के लिए एक परफेक्ट प्लेस है ये। आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी के भी साथ आ सकते हैं। मस्ट विजिट है, काफी कुछ अच्छा है, एडवेंचरस चीजें भी हैं। अगर पेट पूजा देखें तो पेट पूजा के लिए भी अच्छा अच्छा फूड है, काफी कुछ अच्छा है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, सब कुछ काफी अच्छा है। तो आप काफी इंजॉय करेंगे यहाँ पर आकर। तो मेरी तरफ से ये जगह मस्ट विजिट है। तो इस जगह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत इजीली आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ बिजनेस पर।